मैंने तेरे लिए ही 7 रंग के सपने चुने, सपने सुरीले सपने। मैंने तेरे लिए ही 7 रंग के सपने चुने, सपने सुरीले सपने। Welcome to Rendezvous with English. English with Lifestyle Ankur. Hope you are enjoying. Hope you are preparing well for the upcoming examination. My channel has always tried to bring you the best possible knowledge, best possible information I have crafted for you, especially when you are working hard studying these. I also work hard at the same time so that I can provide you with the best information, with the best grammatical skills, so that you can learn, you can become better. And in future, I'm also thinking of adding literature section also completely, so that you can learn that literature, study literature also here, and understand the chapters, understand their connection with the life as well. क्योंकि जो भी चैप्टर्स हम पढ़ते हैं उनका हमारी लाइफ में कुछ ना कुछ यूज जरूर होता है. It definitely has certain use in our lives. So let's begin with today's episode and the last one of the idioms section. Although not only these have to be studied, you have to study else also, but these are the most important ones, which definitely I can say would be found in the paper. So let's study with the first one today. पहला है मनी. तो हश मनी, हश मनी, हश 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 करते हैं. हश का मतलब क्या होता है? चुपके से. तो मतलब जो पैसा गलत सोर्सेस से आए. मनी earned from illegal means. ठीक है. तो जो पैसा गलत तरीके से अर्न किया है हश मनी, उसे कहते हैं हश मनी. ठीक है. तो हाउ कैन वी यूज many people around the world keep hush money. ठीक है. बहुत सारे लोग इलीगल मनी रखते हैं अपने पास. मनी earned through inappropriate means, by selling liquor, by selling drugs, by thievery, dacoity, kidnapping, ठीक है, blackmailing. The online platform which is being used nowadays very frequently for blackmailing people. मैं ईडी से बोल रहा हूँ, आपका घर सीज हो जाएगा. लोग घबरा जाते हैं. My dear children, you as well as your parents, I would like to inform, उनसे भी बताइए that कोई भी no person in the world ever can give you 1 rupee in free. कोई भी. तो अगर आपके पास कोई मैसेज आता है, आपके पास कोई इंफॉर्मेशन आती है कि आप 1000 रुपए जीत गए हैं, इस लिंक पर क्लिक करिए. जस्ट डिलीट इट माय डियर. डोंट बी अंडर ग्रीड. लालच में मत पड़ना. लालच बुरी बला है. जी हाँ, सही पकड़े आप. ठीक है. तो लालच बुरी बला है, तो उस बुरी बला से बचिए. एंड डोंट गो फॉर अर्निंग मनी इन फ्री, क्योंकि फ्री में कोई कुछ नहीं देता आजकल. अगर आपने फ्री के चक्कर में पड़े तो सब गया. ठीक. तो आज का अगला इडियम है टू टर्न द टेबल. टू टर्न द टेबल. टू टर्न द टेबल मेल रखिए, उसको पलट देना, यानी कि टू डिफीट, हरा देना. हरा देना बातों में. हराने का मतलब यहाँ पर मैच में भी हो सकता है, युद्ध में भी हो सकता है, बातों में भी हो सकता है, सिचुएशन में भी हो सकता है. इन एनीथिंग इट कैन बी. बट हाउ कैन वी मेक यूज ऑफ इट इन द सेंटेंस? इन द हॉकी मैच India turned the
टेबल ओवर ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, तो आपकी मैच में इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया के ऊपर टेबल टर्न कर दी, यानी कि ऑस्ट्रेलिया को हरा दिया, सिचुएशन को चेंज कर दिया। तो दैट इज द मीनिंग ऑफ टर्निंग द टेबल। समझ में आया? मेज को पलट देना। तो मेज पलट के तो हम खाना खाते नहीं, यानी कि सिचुएशन को वर्स कर देना, सिचुएशन को खराब कर देना। समझ आया? नहीं समझ आया? समझिए। इफ यू हैवंट अंडरस्टूड, try to understand, my dear children, as I have spent lots of time preparing these chapters, these lessons for you, crafting them out. So now it's your turn to study these topics rigorously so that you excel in the examination. Got it? This is how I can speak English in an American accent. You can also do the same if you are a regular speaker of English. Unless you speak on a regular basis, it's very, very difficult to find words while you're speaking, because words only are from the brain when we are accustomed to a particular situation. तो मतलब जब हम लगातार हैबिट में होते हैं बोलने की, क्रिकेट खेलते हैं, बॉलिंग करते हैं, बॉलिंग हम अच्छी कब तक कब कर पाएंगे? जब हम रोज प्रैक्टिस करते हैं, जब हम रोज बॉलिंग करते हैं, हम टेनिस खेलते हैं, स्विमिंग करते हैं। हाउ वी विल बी एबल टू डू इट इन अ नाइस वे व्हेन वी आर हैबिचुअल ऑफ इट। सो सेम थिंग इट इज। सो वी हैव टू डू इट एट अ स्ट्रेच एवरी डे। वी हैव टू डू इट एट अ स्ट्रेच इज द नेक्स्ट इडियम। एट अ स्ट्रेच तो मींस कंटिन्यूअसली, लगातार, बार बार, लगातार। So when we are doing something at a stretch, when we are practicing regularly at a stretch, the results will be fine. So if you want to excel, practice at a stretch. यानी कि लगातार प्रैक्टिस करते रहिए, लगातार, बार बार। And when you are doing so, when you are rigorous, when you are continuous in practicing every day, every time, then only the results will be positive. If you don't do it on a regular basis, the results will not be positive. समझ आया? समझे? तो लगातार करते रहिए। डोंट लेट योर परफॉर्मेंस गो ऑन द वेन, डोंट लेट योर परफॉर्मेंस डिक्लाइन। सो ऑन द वेन इज द नेक्स्ट रीडिंग। ऑन द वेन मीन्स डिक्लाइनिंग, कम होना। ठीक है, so don't let your performance go on the wane. Don't let your performance go on the wane. यानी कि अपनी परफॉर्मेंस को नीचे गिरने मत दो। बहुत ही मुश्किल से आप इस लेवल तक पहुंचे हैं, तो एफर्ट्स लगातार होते रहने चाहिए। जब कोई बॉलर या कोई प्लेयर बाहर रहता है चोट लगने के कारण या ड्यू टू वेरियस रीजंस, तो उसकी परफॉर्मेंस कम हो जाती है, फिर उसको प्रैक्टिस मैचेस खेलने पड़ते हैं, एंड देन द पर्सन इज टेकन इनटू द टीम। सिमिलरली है, कोई सिंगर है, उसका गला खराब हो जाए, वो गाना नहीं गा पा रहा है कई दिनों से, फिर जब वो वापस आएगा तो उसको रियाज करना पड़ेगा। he will have to practice for a long time, then only he will be able to sing it beautifully. So similar thing is with everyone. So you have to do it at a stretch and don't let it go on the wane. समझे? This is how we can make use of it in a sentence. आपको हम सिचुएशनल बता रहे हैं इसीलिए ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए, बिल्कुल अच्छे से आपकी लाइफ से रिलेटेड चीजें बताकर ही समझा रहे हैं, जस्ट खाली सेंटेंस नहीं बता रहे। ठीक है, नाउ डोंट, इसी से एक और है रिलेटेड, वो है रन डाउन। रन डाउन का मतलब भी लगभग सेम ही है, वीकेन करना या एग्जॉस्ट हो जाना, कमजोर हो जाना या एग्जॉस्ट हो जाना, ये भी लगभग सिमिलर ही है।
तो my energy ran down after playing for an hour. ठीक है, 1 घंटा खेलने के बाद मेरी एनर्जी वीकेन हो गई है, मैं एग्जॉस्ट फील करने लगा, तो दैट इज द मीनिंग ऑफ रन डाउन. ठीक है, एंड ऑलवेज ट्राई टू डू गुड थिंग्स. अपनी तरफ से एफर्ट रखिए. ये मत देखिए कि दूसरा क्या कर रहा है, दूसरों की गलतियां मत ढूंढिए, अपनी गलतियों को सुधारिए. ठीक है, दूसरों की गलतियां अपने आप सामने आएंगी. They will automatically come in front of you. So don't try to find fault with others. यानी कि next idiom, pick holes. Pick holes यानी कि find fault. ठीक है, जो कि अगला idiom है, गलतियां मत ढूंढिए लोगों की गलतियां. ठीक है, don't try to always find fault with others. So she is in the habit of picking holes. वो गलतियां ढूंढने की हैबिट में है. तो she is in the habit of picking holes. तो ये हैबिट आपको नहीं अडॉप्ट करनी है. This is a wrong practice. दूसरों की गलतियां मत ढूंढिए, अपनी गलतियां सुधारिए. दूसरे की गलतियां अपने आप सामने आएंगी. They will automatically come if they are not doing things in a proper way. Oh, got it? And the lesson of the day is a bone of contention. A bone, shaky bone, shaky bone, shaky bone, shaky bone. ये हमारे समय में एक सिंगर थे, रिकी मार्टिन. जब हम आपकी तरीके से पढ़ते थे, when I was studying in high school, there was a fabulous American singer Ricky Martin. Ricky Martin के सॉन्ग्स उस समय धूम मचा रहे थे. तो ये उनका एक गाना है, Shake it bun bun, shake it bun bun, shake it bun bun, shake it bun. तो shake it bun, a bone of contention. A bone of contention यानी कि contention का मतलब होता है आमना सामना करना. बोन ऑफ कंटेंशन, कुत्ते लड़ते हैं हड्डी के लिए, बोन के लिए. तो क्या हुआ, झगड़े का कारण, कॉज ऑफ क्वारल. याद आया? वो हड्डी आती थी कार्टून्स में, बड़ी सी, जिसके पीछे डाल दो तो सब डॉग्स स्टार्ट फाइटिंग. तो उसी से बना है बोन ऑफ कंटेंशन यानी कि कॉज ऑफ क्वारल. ओके, तो इसका हम यूज कैसे कर सकते हैं? डोकलाम. डोकलाम का नाम सुना है? डोकलाम इज द रीजन ऑफ तिब्बत विच हैज बीन ऑक्युपाइड बाय चाइना. सो वो बोन ऑफ कंटेंशन है इंडिया और चाइना के बीच में. तो हम बना सकते हैं डोकलाम इज अ बोन ऑफ कंटेंशन इंडिया एंड चाइना. तो डोकलाम क्या है? बोन ऑफ कंटेंशन है, रीजन ऑफ क्वारल है इंडिया और चाइना के बीच में. सो डोंट डेवलप एनी बोन ऑफ कंटेंशन बिटवीन अस, बिटवीन योर फ्रेंड्स. ठीक है, सभी चीजों को शांति से निपटाने की कोशिश करिए. and keep striving hard. So these were some very important idioms in all the previous episodes. Study them properly and study other topics also which I have already described. Synthesis, transformation, ठीक है, narration, सभी कुछ हमने बहुत अच्छे से explain किया है. And try to study it properly so that you can learn that also. So all the best for the upcoming examination. Pass out with flying colors. ये भी एक idiom था. So have a good time. Keep following. One last request. अगर आपको किसी भी तरीके से हमारे चैनल से बेनिफिट होता है तो आप दूसरों को भी बताइए, so that I can also get a little help from you, a little benefit from your side. It will be very nice of you. क्योंकि एक quotation है, no act of kindness, no matter
हाउ स्मॉल इज एवर वेस्टेड, कि काइंडनेस का कितना भी छोटा सा आपने काइंडनेस शो की हो किसी से, वो कभी भी बेकार नहीं जाती. इट ऑलवेज yields गुड फीडबैक रिजल्ट. ठीक है, सो दैट्स ऑल फ्रॉम मी, फ्रॉम अंकुर, योर मेंटर, योर टीचर, योर फ्रेंड. कीप कमिंग बैक. बाय बाय.